A quick recap of what we did last time. We saw what was the history of climate change negotiations internationally. Then we went through what was the role of IPCC. आज के स्लाइडों में few questions also I put what was the role of IPCC. Then every time we had seen that IPCC has had a influence on the development of policy instruments internationally. So it has played a very important role. And then we had a brief overview last time of the various assessment reports that have come up. We are currently in the 6th cycle, and the first working report has just released its report. Then we discussed three main things: the UNFCCC, Kyoto Protocol, and Paris Agreement. वो जो तीन main है. UNFCCC, why is it important? Because उसने वो divide create किया between the developed and developing countries, and it had put the onus on developed world. कैसे divide हुआ? NX1 and non-NX1. And later on, Kyoto Protocol ने NX1 countries को pick किया, and फिर बाद में they had some emission intensity reduction targets, not intensity, emission reduction targets. Then it directed new funds. GEF create हुआ, which is the Global Environment Facility. Many projects in the developing countries are funded by GEF. It brought reporting into its forte. Every country has to report. जो developed countries है, they report under Kyoto Protocol. जो developing countries है, non-NX1, they report through their either national communications or their bilateral report. And finally, it mainstreamed the adaptation debate into the climate policy. Kyoto Protocol was important क्योंकि इसने legally binding targets दिए किसको? Developed states को. First commitment period ने बोला will reduce 5% below the 1990 levels. Second commitment period, which has come into force only last year December, much more ambitious target, 18% less than 1990 level. In Paris Agreement, the entire dynamics changed. Paris Agreement के बाद, because Kyoto Protocol कैसा बोलता है? It talks of top down, decide कर दिया that 5% रखेंगे, but Paris Agreement talks of a bottom up approach. Bottom up means नीचे से सब countries अपने आप decide करेंगे. तो first thing is इसने temperature के ऊपर it formalized a temperature goal. They said well below 2 degrees by the end of the century. Preferably it should be less than 1.5. How? Every country commits through its own nationally determined contribution. Then it asks for long-term strategies. How are you going to translate these NDCs? And then a global stocktake starting from 2023. So this is what we discussed last time. Now today we're going to focus on the Indian climate policy landscape. I will not discuss, let me make it very clear, I will not discuss the policies in detail. I will just tell you India में, क्योंकि as we saw last time, internationally बहुत कुछ शुरू हुआ right from 1960s onwards, and then पहला convention निकल के आया 1992 में, फिर उसके बाद step wise we saw how everything developed. How that international, whether things developed by itself within India or there was a role of international pressure over India. So how did the Indian climate policy landscape evolve? India में क्या-क्या changes आए? तो हमारे climate इंटरनेशनल जो हमने जो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली जो कमिटमेंट किए थे उसका क्या कमिटमेंट्स थे? हाउ डिड इट ट्रांसलेट इनटू आवर डोमेस्टिक पॉलिसीज? हु वर द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड? देन व्हाट वाज इंडियाज अप्रोच? सो वी हैड अ को-बेनिफिट्स अप्रोच विद दिस, टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट, एंड देन how the Indian climate policy developed. We are going to discuss few things, discuss the NDCs, discuss ISA, which is International Solar Alliance. Why? Because India took a leadership role in formulating ISA. Then the recent announcement that our PM has made in COP26 Panchamrit, the NAPCC and 8 missions. हालांकि timeline के हिसाब से थोड़े आगे पीछे, but I'm going to cover it like this because if I cover everything chronologically, it will become very cluttered. So we'll start with the broad thing, then keep on zeroing down. And then NAPCC यानी कि National Action Plan on Climate Change, उसके अंदर जो 8 missions है, I will not go into the details. It is your work to read it because वो बहुत ज़्यादा technical हो जाता है. Another thing is it has got so many targets. The targets have been revised so many times. I will not be able to pack everything within a period of 40-45 minutes what I have. And then we'll have a brief look at the State Action Plan on Climate Change. So this is the structure that we're going to cover today. Now the thing is, जैसे if we look at UNFCCC or we look at Kyoto Protocol not applicable to us, but Bali Action Plan में नामा आ गए. नामा मतलब Nationally Appropriate Mitigation Action आ गए, या फिर उसके बाद Paris Agreement आ गया. तो internationally it is agreed. Every country for which after whatever negotiation process it goes through, it decides, okay, we agree, and this is the broader agreement over which we have, we give our consent to take action. But where does the action actually take place? Countries also decide कर दिया. The fulcrum lies at the national level. So whatever commitment has either been under UNFCCC, चाहे वो
फ्रेमवर्क के थ्रू आ रहा हो या पेरिस अग्रीमेंट के थ्रू हमने अपने एनडीसी में कमिट किया, और फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो ओनर्स होता है वो होता है कंट्री के ऊपर. यू एग्जीक्यूट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट लाइज विद द कंट्री, ऑल्सो बिकॉज योर नेशनल सॉवरेनिटी कम्स इन टू रोल. नो अदर कंट्री कैन टेल अस कि अपने सॉवरेन लैंड के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स. एंड वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? The first step is you have to make changes in your national laws and policies, because you make a commitment. जैसे suppose अब हम recently बोलते हैं कि हमने India will go carbon neutral by 2070. How will India go carbon neutral? So you have to strategize. ऐसे करेंगे. उसके लिए कुछ या तो पॉलिसी प्रोसेस इन प्लेस होनी चाहिए या फिर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन प्लेस होनी चाहिए. अब उसके जो प्रोसेसेस हैं, उनके जो आउटकम्स है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में मतलब द डिटेल्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हम फाइनल डिटेल्स आज डिस्कस नहीं करेंगे. ब्रॉडली वो फाइनल डिटेल्स विल डिस्कस. आई विल ग्रुप देम सो इट बिकम्स इजी. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. सो व्हाट आर द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स दैट वी पिक्ड अप? जब हमने UNFCCC को अग्री किया तो हमने किस चीज के लिए अग्री किया? वी अग्रीड कि वी विल रिपोर्ट टू द UNFCCC थ्रू द प्रोसेस ऑफ NATCOM या BOR, क्योंकि हमारे डेवलपिंग कंट्री पार्टीज के ऊपर तो सिर्फ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन था. तो हम क्या करते हैं, एवरी 5 to 7 years वी सबमिट आवर नेशनल कम्युनिकेशन, एवरी 2 years वी सबमिट आवर बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, विच गिव्स द एंटायर पोथा कि हमने ये कुछ किया है क्लाइमेट चेंज में. देन बाली एक्शन प्लान हुआ 2007 में. उसने क्या दे दिया? नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन दे दिए. तो हमने नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन के अंडर क्या किया? By 2009 we came up with Copenhagen pledge. उसका डिटेल्स अभी हम डिस्कस करेंगे. तो हमको भी मतलब इंटरनेशनल प्रेशर, इनफैक्ट व्हेन वी स्टडी द इवॉल्वमेंट ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी, विल से 2007 के बाद इंडिया में इंटरनेशनल पुश थोड़ा ज्यादा बढ़ गया. दैट वाज अनदर ट्रिगर हाउ क्लाइमेट पॉलिसी इवॉल्व ओवर इंडिया. देन हमारे लिए पेरिस अग्रीमेंट में हमने कमिटमेंट्स ले लिए. कौन से? हमने नेशनल एनडीसी ले लिया, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन का कमिटमेंट आ गया, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट करने का कमिटमेंट आया. तो ये हमने जो इंटरनेशनली अग्री किया उससे हमारे ऊपर कमिटमेंट्स आ गए. नाउ जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा, क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन वुड बी थ्रू changes in national laws and policies. Now once you've made those national laws and policies, then what happens? Who implements the national laws and policies? That implementation is not done by national government, it is done by state governments. इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, अलग अलग क्योंकि अभी हम जब नेशनल NAPCC देखेंगे तो उसमें जिन जिन डोमेन्स को NAPCC कवर करता है उसमें से बहुत सारी चीजें जो कि स्टेट लिस्ट में आती हैं. इफ यू रिमेम्बर योर, यदि सिविक्स में पढ़ा होगा पहले कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. यूनियन लिस्ट में कौन से आइटम्स आते हैं जो कि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी? नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, दुनिया भर की इमरजेंसी, मतलब देख लेना लिस्ट में क्या क्या यूनियन लिस्ट में. स्टेट लिस्ट में क्या आता है? वाटर, फॉरेस्ट, हेल्थ, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं. यानी कि अगर वाटर के ऊपर कुछ डिसीजन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू मेक इट्स ओन लेजिस्लेशन. सो कर्नाटका कैन हैव इट्स ओन लॉ, Tamil Nadu can have its own law, and if you're following debates, you'll find water के ऊपर इतनी that division of water, जो rivers एक state से दूसरे में जा रहे हैं, many of the states are involved in distribution. जिसने हमारा share of water ले लिया, उसने हमारा share of water लिया. So the thing is that once the national government has legislated or has formulated a policy, then the उनका reach वहीं तक limited रहता है अगर वो union list का item नहीं है तो. Most of the commitment for climate action lies with the sub-national bodies. Sub-national मतलब जो national के नीचे आती हैं. So अगर हम sub-national bodies बोलें तो who are the actors? Actors मतलब it is who are the people who are involved in action. This is the terminology that we use. Actors. तो कौन सी हैं? अगर हम government entities देखेंगे तो उसमें state government आ जाएगा. District level पे district administration, municipalities, local bodies आ जाएंगी. Finally, the owners of execution lies with them. Then you have corporates, because business की इतनी presence है. How does it affect? Depending on the type of technological choices. In fact, जो बहुत sustainability reporting में काम कर रहे होंगे उनको मुझे corporates के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, end of pipe emissions कैसे कम करें, प्रोडक्ट्स में हमारा कितना कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है, लाइफ साइकिल अप्रोच है, कौन सी प्रोसेसेस हम यूज कर रहे हैं, कितना हमारा GHG वो हो रहा है, एमिट हो रहा है पूरी प्रोसेस में. The people are all those who've been working with the corporates know it very well, and sustainability reporting अब तो mandated हो गई है, तो they are also primary actors. So these are basically the businesses. Other than that, you have civil society organization. Civil society organization क्या होती है? जो गवर्नमेंट से और बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. That is civil society organization. It can be an advocacy group, it can be an educational institute, it can be a research institution. So the ones who represent the what do you say, the interest of civil society.
उनको बोलते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका ब्रॉडली अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेशन ये कि गवर्नमेंट का और बिजनेस का पार्ट नहीं है, they're all CSOs. And as far as our environment policy or climate policy in India is concerned, CSOs have played a very important role. And what has been the important role they have played also and they continue to play is, first thing is they raise awareness. बहुत सारी चीजें तो मतलब if you have been following the environment debate, you'll find that many of the things were raised first by चिपको आंदोलन आप देखो, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन देखो, these are the few things that you can, almost everybody knows about it. So they raise awareness, they agitate for action. Jahan pe government is doing something which is not in the interest of the community, not in the interest of the civil society, and no government or no business body is coming forward. This is the role of the CSO. They raise awareness and they do advocacy, they agitate for action. Other than that, they also guide policy through independent research. In fact, जो हमारा अभी जो commitment India ने दिया है for net zero by 2070, they have major research think tanks. Some of them I know in Delhi who have उनका research had guided the government of India that the entire world. If you recall, last session we did पेरिस अग्रीमेंट का लॉन्ग टर्म गोल क्या है. पेरिस अग्रीमेंट कहता है हम एनडीसी करेंगे, फिर ग्लोबल स्टॉक टेक करेंगे, 5-5 साइकिल में, साल की साइकिल में रिवाइज करते रहेंगे. लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि बाय 2050 द कंट्री शुड कमिट टू गो कार्बन न्यूट्रल. बट इंडिया डिड कमिट फॉर 2050, इंडिया कमिटेड फॉर 2070. व्हाई? बिकॉज आप थ्रू योर मॉडलिंग, थ्रू योर अभी विल गो इनटू द डेवलपमेंट गोल्स आल्सो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर नेशनल प्रायोरिटी, कितना इंडिया के लिए अचीवेबल है. मतलब without compromising its own national interest, how much is possible for India? 2050, if India wants to develop, and we're talking of sustainable development, if India wants to develop, 2050 is not possible. Now, net zero ko I'll briefly cover in next session also, because net zero is a very important topic. If you see these countries, the developed countries who are saying, somebody saying hum 2050 more, Western worlds usually most of them have committed by 2050. China has committed by 2060, but these countries have already gone neutral by 2000 से लेके 2015 के बीच में. These countries had already gone carbon neutral. Carbon neutral मतलब, sorry, not carbon neutral, sorry, it's a wrong term. They had already peaked their emissions. Peaked their emissions मतलब अगर आप पहाड़ में जा रहे हो और एक पीक आएगा, मतलब आप बढ़ चढ़ रहे हो, चढ़ाई आती है, पीक में पहुंचते हो, फिर आपका नीचे आता है, तो क्या आपके एमिशंस बढ़ेंगे? इफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर, योर एमिशंस विल इंक्रीज. देन एट पर्टिकुलर लेवल वेयर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग एल्स, आप उस स्टेज पे पहुंचते हो कि यू आर यूजिंग सच एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज कि आपके एमिशंस उसके बाद यू आर एबल टू कैप्चर एमिशंस बियॉन्ड दैट. तो आपके एमिशंस वहां पे पीक कर जाते हैं. इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम. Thereafter, through technological interventions, you are able to reduce your emissions. That is called peaking of emissions. India has not yet peaked. India is still growing. China has not yet peaked. China is still growing. But the countries who have announced that we will go carbon neutral by 2050, these countries have already peaked between 2000 to 2015, 2011 तक, जो बड़ी major economies है. Now, अगर आप 2000 या 2010 से लेके 2050 लेते तो how many years you have? You have about 40 years. मतलब कुछ कंट्रीज से तो और ज्यादा थे, जर्मनी वगैरह, दे अर्ली 2000 दे पीक्ड. सो दे हैड ऑलमोस्ट 50 इयर्स फ्रॉम पीक टू गो कार्बन न्यूट्रल. कार्बन न्यूट्रल मतलब अब हमारे एमिशंस न्यूट्रल रहेंगे, हम कुछ एडिशनल नहीं डालेंगे, जितने ईयरली एमिट हो रहे हैं उतने हम सिंक से निकाल लेंगे. नाउ इंडिया, व्हेन इट हैज नॉट पीक्ड, इंडिया हैज कमिटेड टू going carbon zero by 2070. 50 is not possible. Still, हमें बहुत ambitious काम करना पड़ेगा. I'll not go more into it because I'll end up utilizing the time for that. But it is policy. It is not that आज दिमाग आज बंद कर गया कि मोदी जी गए and he said हम तो 70 तक हो जाएंगे, अगले साल बोलेंगे नहीं हम तो 50 में हो जाएंगे. No, there is research behind those national statements that come out from our political leadership. Then the CSOs have also a responsibility of holding the governments accountable. You will find, I don't have to name whether it is social causes, whether it is environmental causes, you usually find social and environmental causes. It is the civil society organization that holds the government accountable. And then long-term focus kahan pe rehta hai? On development policy debates. Isme CSOs got a very important role. Now, what is India's approach to climate action? मतलब हमने जो भी international targets को मान लिया है, जिन frameworks के लिए agree कर लिया. So India's approach is called co-benefit approach. What is co-benefit approach? Co-benefit मतलब को का मतलब होता है दोनों को, कोऑपरेशन मतलब साथ में ऑपरेट करना, को बेनिफिट मतलब दोनों को बेनिफिट मिला. किन दो चीजों की बात हो रही है? क्लाइमेट कंसर्न्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसी. तो आप ऐसी क्लाइमेट पॉलिसी, मतलब आपकी पॉलिसी ऐसी हो कि जिससे कि आपकी
ऐसे क्लाइमेट पॉलिसी मतलब इस तरह से फॉर्मुलेट हो कि इसके रिजल्ट्स आपके डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो, या आपकी डेवलपमेंट पॉलिसी ऐसी डिजाइन हो कि उससे आपको क्लाइमेट के बेनिफिट्स भी मिले। तो सपोज टुडे वी डू समथिंग फॉर पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ इज व्हाट? पब्लिक हेल्थ इज अ डेवलपमेंट एजेंडा. पब्लिक हेल्थ को हम ऐसे स्ट्रेटेजाइज करें या ऐसे फॉर्मुलेट करें कि उससे हमारे पास क्लाइमेट के भी आउटकम्स आ जाएं, या क्लाइमेट पॉलिसी को हम ऐसे डिजाइन करें कुछ एरियाज में जहां से कि हमारे पास, जैसे अगर हमने बोला कि सिनेरियोज की हम बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो क्या करेंगे, अगर हमने उन क्लाइमेट प्रोजेक्शंस को यूज किया अपनी पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी में, तो उसका फायदा क्या होगा? एक तो आपकी क्लाइमेट पॉलिसी हेल्थ को गाइड कर रही है, दूसरा आपके हेल्थ के आउटकम्स भी बेनिफिट करेंगे. सो को बेनिफिट अप्रोच सेज दैट यू डिजाइन योर क्लाइमेट पॉलिसी सो दैट इट benefits your development policy, and your development policy should integrate your climate concerns so that it gives you climate action. It talks of synergy between climate goals and development goals. इंडिया का ये जो चेंज हुआ है या को बेनिफिट अप्रोच जो इंडिया ने हमेशा से रखा है, ये दिस इज टू प्रायोरिटाइज योर, मतलब कीपिंग a synergy between your development and climate. Now, what are our development goals? When we talk of development goals, क्या क्या है? आप sustainable development जो हमने SDG बात किया था last year or maybe last to last session, 17 SDG, you go through it. If you talk in context of India, poverty eradication is important, food security is important, public health is important, education, water sanitation, electricity for all, self-reliance, make in India हम बोलते हैं, disaster risk reduction. You'll have a look at the disaster vulnerability profile of our country. Economic growth is an important thing. India is still developing. Urban development ho raha hai. They said about 30-35% of the urban India is still to be built. So these are our development goals. What are our climate goals? Climate goals are mitigation, यानी कि GHG emissions को कम करना, adaptation, यानी कि जो impacts है उनके लिए prepare करना, climate finance. We are developing country. We still need a inflow of finance to undertake our mitigation and adaptation. We want advanced technology and we want capacity building. So ये हमारे climate goals हैं, ये हमारे development goals हैं. And हमारी approach, यानी India's approach has been a co-benefit approach. So now how did it evolve? So 2007 was a decisive year. Before 2007, climate हमारे लिए generally एक foreign policy issue था कि एक international conference हो रही है और उस international conference में COP हो रही है कोई, तो COP में जाके generally delegations में MEA यानी Ministry of External Affairs और Ministry of Environment या एक आध कुछ और representative चले जाएंगे. तो it was mainly a foreign policy issue. So you had limited institutional arrangement. Institution मतलब चाहे वो मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो सब नेशनल इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट हो, वो सब इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट बहुत कम था. और एक अथॉरिटी हमारे पास थी, बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2000, वाज अडॉप्टेड इन 2007. एंड आई मेंशन्ड लास्ट टाइम कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद क्या हुआ था कि मार्केट मैकेनिज्म आ गए थे, कार्बन मार्केट डेवलप हो गया था. तो उसमें क्या हुआ, फंडिंग आ रही थी इंडिया में भी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे, जहाँ पे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स फंड होते थे कि आप यहाँ पे इतना एमिशन रिडक्शन कर लो और वो काउंट हो जाएगा अगेंस्ट द क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट्स ऑफ द अदर कंट्री. नाउ बिकॉज देयर वाज फ्लो ऑफ फंड्स, सो वी हैड अ नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी. दैट वाज द ओनली इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वी हैड बिफोर 2007. नाउ 2007 व्हाट हैपेंड? 2007 देयर वाज अ जंप स्टार्ट बिकॉज बाली एक्शन प्लान आ गया. बाली एक्शन प्लान ने कहा नामा, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन. तो देयर वाज इंटेंस प्रेशर कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री को भी डोमेस्टिक मिटिगेशन एक्शंस देना, नेशनली अप्रोप्रिएट. आप खुद डिसाइड कर लो पर कुछ तो कमिट करो. So there was a huge international pressure. So what happened under this, because geopolitics बहुत काम करती है. 2007 में the Prime Minister Manmohan Singh was the Prime Minister at that time. He constituted the PM Council on Climate Change. क्या टास्क था? टास्क था कि आप कोऑर्डिनेट करोगे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. एक नेशनल एक्शन प्लान बनेगा एंड यू विल आल्सो, जो PMCC है, PMCCC, ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमें क्या एक्शंस लेने हैं. बाय 2008, दिस वाज जस्ट बिफोर 2009 में कोपेनहेगन की कॉप होने वाली थी. एंड उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज, G8 कंट्रीज, G8+7 था. चाइना ने 2007 में अपना नेशनल एक्शन प्लान निकाल लिया. सो डेवलपिंग कंट्रीज से जो मेजर पोल्यूटर्स थे, they had already come up with a national action plan. Now if you look at the international picture, you find, अभी तक हमारे पास डिबेट थी. India was known as the big elephant that was blocking the climate train. In fact, if you go through you'll find वो पता नहीं पेरिस अग्रीमेंट के टाइम है, उसके कोपेनहेगन कैंकून अग्रीमेंट्स के टाइम का है. there's a famous न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून which shows कि there's a climate train that's going in India as a hathi sitting in, because that is blocking the climate train. So they wanted to change that international image. So what they did is
2007 में चाइना भी निकाल लिया. Within a period of 1 year, 2008 में National Action Plan on Climate Change was released by Government of India, and it had 8 national missions. This I'll cover later on, but let me just fit it into the timeline. So NAPCC, 8 missions, so that by the time you reach Copenhagen or participate in Copenhagen, your NAPCC and 8 missions were already out. You had shown to the world that yes, we are serious about climate change, and these are the 8 missions we are going to undertake. And वो 8 missions के बाद फिर बहुत कुछ था, कैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे, SAPCC आ जाएगा. 2009 में वी टुक अ कोपेनहेगन प्लेज. क्या थी कोपेनहेगन प्लेज? ये एक मिटिगेशन टारगेट है. मिटिगेशन मतलब हम एमिशंस को कम करने की बात कर रहे हैं. वी सेड a 20 to 25% reduction in the emission intensity of economy from 2005 levels by 2020. यानी कि 2005 में हमारी जो emission intensity of GDP थी, 2020 में हम 2005 के लेवल से 20 to 25% कम कर देंगे. ना सी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का लंबा फॉर्मूला होता है, लेकिन ऊपर एमिशंस आते हैं और नीचे जीडीपी आती है. सो अगर आपने इस पूरे फिगर को कम करना है, 20-25% रिड्यूस करना है, देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग अबाउट इट. इधर आप न्यूमरेटर को कम कर दो, बेसिक मैथमेटिक्स है, न्यूमरेटर को कम कर दो, या आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दो. तो ऊपर आपके एमिशंस आ रहे हैं, तो या तो हम एमिशंस कम कर देंगे या फिर हम अपनी जीडीपी को बढ़ा देंगे. तो हमारी जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है और जिस जर्नली क्या होता है, वो दोनों की ट्रेजेक्टरी अलाइन चलती है. जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे एमिशंस बढ़ते हैं. तो आप एमिशन इंटेंसिटी अगर निकालोगे, एमिशन इंटेंसिटी मोर और लेस ब्रॉडली, there is no significant variation. It remains more or less the same. But India committed that we'll bring it down by 20 to 25%. This commitment we made in 2009. And then उसके ये तो इंटरनेशनल हो गया. और नेशनल में we said, because हमारा 2008 में NAPCC आ गया था, नेशनल एक्शन प्लान. So 2009 onwards they say now because हमने तो नेशनल पॉलिसी निकाल दी, now the states have to integrate. Why? Because सब नेशनल एक्शन तो सब नेशनल bodies नहीं करना है. So there was huge push for developing SAPCC all states. 2010 to 2014 was the period of institution building. Climate finance became mainstreamed. तो 2011 में climate finance unit आ गया, जिससे सारे climate finance related issues को देखता था. There's a lot of budget and everything else coming. And adaptation fund बन गया था 2000. एक सेकेंड. Adaptation fund आ गया था UNFCCC. पहले जेफ था. जेफ तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी था. They also came up with a adaptation fund, जहां से कि fund used to flow from developed to developing countries purely for adaptation project. So 2012 में NABARD was accredited as the national implementing entity. तो हमारे पास जितना भी पैसा adaptation fund के थ्रू आता है, वो NABARD के थ्रू flow होता है, and NABARD के थ्रू it flows down to various national or sub-national projects. 2014 to present. Why 2014? Because we had a change in the central government in 2014. We had the current government which is running in its present term. This came up, and then there was more visibility in the global climate change platforms as far as India is concerned. First thing is they intensified the efforts to mainstream climate change into the development agenda. पहला काम उन्होंने किया, they redesignated. It used to be पहले MOEF, Ministry of Environment and Forest. It was redesignated as Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So that was, it's a signaling. And then a lot of commitments, as we'll see, they came up and they basically showcase that India is not the roadblock or is not the one which is blocking the training. They said we are not a part of the problem, we are also a part of the solution. In spite of bearing no historical responsibility, we are ready to take leadership as far as climate action is concerned. 2015 में COP21 हुआ, India came up with it INDCs. I इसलिए लगाया कि पेरिस एग्रीमेंट आने से पहले, पेरिस एग्रीमेंट आया था दिसंबर में, INDC सबमिट हो गए थे अक्टूबर 2015 में. उस समय उसके आगे इंटेंडेड वर्ड लगता था. तो जो हमने सबमिट किए हैं वो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है. तो आई कवर दिस थिंग. एंड देन COP21 में पेरिस एग्रीमेंट के पैरेलल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन गई, विच इज अ ह्यूज एसोसिएशन. जो ट्रॉपिक्स के बीच की कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज ने कहा विल डू एसोसिएशन, विल कोलैबोरेट एंड try to utilize this, so incoming solar radiation, that is, tropical region is rich in incoming solar radiation. We should utilize this natural resource. And then we'll talk about the leadership at COP26. Is मैंने गलत लिख दिया. This is not 2011. This is 2021. Sorry, this is a typo mistake from my side. Now, what are the NDCs? India has submitted 8 NDCs. What are the 8 NDCs? इसमें पता नहीं दिख रहा. This is मतलब इसमें बेसिकली 3rd, 4th 8 NDC है, 3rd, 4th और 5th क्वांटिफाइड है. क्वांटिफाइड मतलब ये दे टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. रेस्ट एवरीथिंग आर दिस इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, व्हिच इज बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन. बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ कहानी इनटू इट
हम ट्रेडिशनली इतने बढ़िया थे भी वैसे, बट हम सस्टेनेबल अपने ट्रेडिशनल वेज को और जो हमारे मॉडरेशन थे, बेसिकली इंडिया में एक्सेसिव कंजम्पशन का कभी ट्रेडिशन नहीं रहा है. इट हैज ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशन ऑफ मॉडरेशन. अति किसी चीज की नहीं है, तो सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग. देन वील फॉलो अ क्लाइमेट फ्रेंडली पाथ. Yes, this is important. Reduce the emission intensity of GDP by 30 to 35%. हमने कोपेनहेगन प्लेज में क्या बोला था? 20 to 25%. नाउ 2015 में, यानी कि 9 से 15, 6 years में हमने बोल दिया हम 30 to 35% रिड्यूस कर देंगे. वेरी एम्बिशियस कमिटमेंट इंडिया मेड. 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy. यानी कि 2030 में हमारी जितनी भी installed capacity होगी उसमें से 40% non-fossil fuel से होगा. Now see the use of terminology. It does not say from renewable energy. It says non-fossil fuel. Non-fossil fuel में क्या आता है? अभी जैसे अभी इन्होंने लेजिस्लेशन चेंज हुआ है कि लार्ज हाइड्रो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट हो जाएगा. तो नॉन फॉसिल में लार्ज हाइड्रो भी काउंट होता है. इवन न्यूक्लियर इज काउंटेड इन नॉन फॉसिल फ्यूल. बट this is good usage of terminology, but 40% share 2030 तक 40% of our share of energy will come from non-fossil fuel. but इसमें condition लगाई है कि हमारे को with the help of transfer of technology and funding from JEF. Then the third committed quantified target is that will create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons. कहाँ additional forest cover हो, तो basically afforestation बहुत drive बढ़ाएंगे और इतना additional carbon sink create कर देंगे. फिर adaptation से related है, न्यू फंड्स डेवलप करने से है, और कैपेसिटी बिल्डिंग से. 8 एनडीसी है जिसमें से 3 आपके क्वांटिफाइड गोल्स हो गए. अनदर थिंग वाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए साइडलाइंस ऑफ COP21 यानी पेरिस में चला. और किसका था? इंडिया और फ्रांस का जॉइंट एफर्ट था. क्या करना है? हमें सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस लेने. दिस इज द ट्रॉपिकल बेल्ट इज रिच इन सोलर रेडिएशंस, लेट अस यूटिलाइज इट. क्या स्ट्रैटेजी थी? टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी. इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स यूज हो रहे हैं. कौन कौन से 1000 है? फर्स्ट थिंग, दे विल मोबिलाइज 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट 2030 तक. $1000 को मोबिलाइज करें. दिस इज द फर्स्ट 1000. सेकंड थिंग इज delivering energy access to 1000 million people. And third thing is installation of 1000 gigawatt of solar. 1000 gigawatt कहाँ? 1000 gigawatt पूरे ट्रॉपिकल रीजन में, जो हमारा जो कंट्रीज उस आईएसए के फ्रेमवर्क में अग्री करी थी. सो दिस इज नोन एज टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी. हमारी करंट गवर्नमेंट इज वेरी गुड विद using terminology. So this was a towards 1000 technology. It is headquartered in India. इसका एक NICE करके इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी. So ISA is housed within India. And then we have 80 countries as of now which have signed and ratified the ISA framework. So this was basically India's initiative supported by France. Big initiative. Now recently Glasgow में COP26 हुई है, and our political leadership announced Panchamrit or a 5-fold strategy there. What is the Panchamrit? First thing is they're telling हम non fossil energy capacity को बढ़ा देंगे. कब तक? कहाँ तक? 500 gigawatts by maximum 2030 के commitments हैं. So non fossil energy capacity to 500 gigawatts. Second thing is 50% of energy requirements from renewable energy. INDC हमने क्या बोला था? 40% from non fossil. यहाँ हम कह रहे 50% from renewable energy. Third we said कि हम additional emissions कम करेंगे. कैसे? Reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now. Now मतलब 2021 till 2030. Another 9 years में हमारे जो projected emissions हैं, projected emissions मतलब अभी जो projections बता रहे हैं कि इंडिया के 2030 में, say for the sake of example, जैसे कि इंडिया के 3.8 बिलियन टन होंगे या 5 बिलियन टन होंगे, जस्ट अ फिक्टिशियस एग्जांपल. तो अगर प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि हम इस ट्रेजेक्टरी में जाएंगे, हम कहेंगे प्रोजेक्शंस जो भी बता रहे हैं हम उसे 1 बिलियन टन और कम कर देंगे. And then we'll reduce the carbon intensity economy by 45%. See, 2009 में we said 20 to 25%. INDC यानी 2015 में we said कि we'll reduce it by 30 to 35%. Now we said 2021 में that will reduce it by 45%. Very ambitious target. And thus, by these actions, 4 actions we say, so by the year 2070, India will achieve the target of net zero. यानी कि 2070 तक India zero में आ जाएगा. Somewhere in between, some people say, सब projections के अलग अलग वो हैं. Some people say that India will peak by 2030. Peak मतलब emissions peak में जाएंगे. जो coal और इसके हैं, some are saying, somewhere by the middle of the decade will peak. So let us take 2070. So 2030. अगर 2030 में India ने peak कर दिया, 2030 to 2070 is 40 years.
So within a period, what we are committing is, well, estimation. Abhi it has not been announced. No country has. I think China ने अपना कुछ peaking year दिया है 2030. India has not formally announced peaking कब होगी, but India has announced हम 2070 तक carbon neutral हो जाएंगे. And now, so I initially covered कि क्या क्या था. तो NAPCC important हुआ, 8 missions important हुए, हमारा NDC हो गया और हमारा SAPCC हो गया. NDC we covered, ISA we've covered. Now I'll come into NAPCC. NAPCC means National Action Plan on Climate Change. यहाँ से हमारा जो domestic policy का जो jump start हुआ है, it started with the NAPCC. It changed the, it is important in 3 ways. How it changed the narrative, it introduced policies, and it introduced institutional infrastructure. कैसे कैसे narrative change हुआ, उसके पहले India was always considered कि India commit नहीं करता. We always say कि developing और developed का divide है, developed country responsible है, तो action उनका बनता है. हमारे को finance दो तो हम काम करेंगे. हमें मतलब basically हमारी जो priorities हैं, they are क्या बोलते हैं, poverty elevation and food security is important for us. Development is important to us, so we will not commit for mitigation. That was our stand. But 2007 के बाद से it changed with the introduction of NAPCC. Basically, it was shown कि हम co-benefit approach use. Co-benefit अगर आप NAPCC पढ़ोगे, बहुत बड़ा document नहीं है, 45 pages का document है. So it starts with the co-benefit. Other than giving introduction क्या क्या है, it starts with that we. इसका reason ये भी है कि there was a realization कि if we don't do anything about it, then by the time we say we'll do something about it, बहुत late हो जाएगा. और दूसरा क्या है, उसके repercussions तो हमें झेलने ही है. तो it is always better कि let the debate go on, but you should also start taking action. Not take responsibility, but take some action. So it changed the narrative and introduced the concept of co-benefits, measures that promote development objectives while also yielding co-benefits for addressing climate change effectively. हम अपनी policy से सपोज हमने renewable energy की बात करी, तो उसका हमारा development objective क्या होगा? It ensures energy security. अगर हमने बोला हम agriculture की mission करेंगे या sustainable हिमालयाज की ecosystem की mission करेंगे, या हमने wind की mission है नहीं वैसे, पर energy efficiency की mission करेंगे, तो उसके co-benefits क्या आ रहे हैं? कहीं पे हमारे पास food क्या आ रहे हैं, कहीं पे हमारे पास energy security क्या आ रहे हैं, कहीं पे हमारे पास cleaner environment क्या आ रहे हैं, या हमारे पास जहाँ वाटर के बहुत सारे मिशन इंटरट्वाइंड भी हैं. तो नेशनल वाटर मिशन से क्या हो, नेशनल वाटर मिशन कहाँ पे आएगा? वो एग्रीकल्चर में फीड इन करेगा अगर आपका सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है. तो बेसिकली को बेनिफिट अप्रोच है. आप ये मिशन करोगे, ये हमारे डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को भी सर्व करेंगे, इससे हमें क्लाइमेट चेंज के बेनिफिट्स मिलेंगे. From policy and institutional perspective, 8 missions आ गए and each is backed by institutional structure that forge linkages with different line ministries. क्या मतलब हुआ इसका? हर मिशन की एक नोडल मिनिस्ट्री है, और नोडल मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि वही है, वो मिनिस्ट्री अलग मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट भी करती है. तो आपके पास लिंकेजेस हुई, जैसे पहले आप साइलोज में काम कर रहे थे, अब उसको जिसको हम देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कन्वर्जेंस की हम बहुत बात करते हैं. बहुत ज्यादा अचीव भी नहीं हुई है, बट एटलीस्ट इट किक स्टार्टेड. So that is why NAPCC was important. Now, what are the 8 missions? So you have at the center National Action Plan for Climate Change. There are 8 missions. First is on water. Second is on enhanced energy efficiency, solar. Then you have Green India, which deals with afforestation. Then you have sustaining Himalayan ecosystem. Why Himalayas? Himalayas are important for many reasons. Monsoons के लिए important है, weather के लिए important है, वहाँ की biodiversity के लिए important है, major rivers originate. So there are many reasons why Himalayan ecosystem is important. Then you have for sustainable agriculture, sustainable habitat, and there is one mission for strategic knowledge on climate change, which says कि ये सब चीजें तो ये ऑपरेशनल, बाकी की जो मिशंस हैं, दे आर ऑल ऑपरेशनल मिशंस. दिस इज अ नॉलेज मिशन. जैसे कि स्ट्रेटेजिक नॉलेज, क्या चीजें हमें क्लाइमेट चेंज में करनी चाहिए, व्हाट इज द लेटेस्ट रिसर्च. कुछ एरियाज में इन मिशंस को फीड करने के लिए देयर हैज टू बी सम रिसर्च दैट फीड्स इनटू दीज इंडिविजुअल मिशंस आल्सो. सो उस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली नॉलेज पार्टनरशिप्स बनाने के लिए, नॉलेज नेटवर्क्स को प्रमोट करने के लिए, दिस इज अ नॉलेज मिशन भी है. आई ब्रीफली कवर बिकॉज इनके ना बहुत सारे टारगेट्स हैं हर मिशन के, और बहुत सारे टारगेट्स रिवाइज हो गए बिकॉज 2008 इट केम आउट. 2008 to 18 is 13 years हो गए, बहुत सारे टारगेट्स रिवाइज हो गए. सो इफ आई गेट इनटू द इंटीग्रिटीज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. आई विल ब्रॉडली कवर ये क्या करता है, एंड देन विल चेंज ओवर टू SAPCC. SAPCC भी मैं कवर नहीं करूंगी ज्यादा. सोलर मिशन क्या है? इट प्रमोट्स द यूज ऑफ सोलर पावर. इसका बेसिक मोटिव ये है कि सोलर पावर है तो बहुत सारे सोलर पार्क्स निकल के आ रहे हैं. आपको रूफटॉप सोलर के लिए गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी. और अभी तो पहले तो सोलर के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे,
अब तो सोलर के प्राइसेस बहुत कोलैप्स कर गए, इंटरनेशनली आल्सो द प्राइसेस हैव गॉन डाउन. सो बेसिकली इट्स यूजेस टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर पावर. रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स में इसका है, एनडीसी में इसका फायदा है, बहुत सारे मिशंस में इसका फायदा है. तो एंड इसके बेनिफिट्स तो हैं, यू हैव क्लीन एनर्जी. देन मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसका एक फायदा ये है, मतलब इसका बेसिक ये है कि इट प्रमोट्स द मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. इसमें वो होते हैं हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स जनरेट होते हैं. बेसिकली अगर आपकी एनर्जी एफिशिएंसी, अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी की पॉलिसीज को यूज कर रहे हो तो उससे आप एक मार्केट जनरेट करते हो, और वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बेसिकली देयर इज अ इंसेंटिव अगर आप एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स को यूज कर रहे हो. देन यू हैव मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट. क्या है? टू मेक द सिटी सस्टेनेबल. कैसे? improvements in energy efficiency in building, management of solid waste and shift to public transport. तो आपके जैसे अमृत मिशन है, बहुत सारे सब मिशन हैं जो सस्टेनेबल हैबिटेट के, या आपके पास बिल्डिंग के कोड्स आ जाते हैं, स्टार रेटिंग्स, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है बहुत सारा, स्वच्छ भारत मिशन वो भी इसी के अंदर, मतलब इंटरट्वाइंड है बहुत सारा. बस सस्टेनेबल हैबिटेट में एनर्जी एफिशिएंसी आती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वाटर मिशन, सो इट टॉक्स ऑफ व्हाट? कंजर्व वाटर, मिनिमाइज वेस्टेज, more equitable distribution across states and both across and within the state. So basically this is focused on water resource management. Sustaining Himalayan ecosystem, इसका बेसिक है protecting the Himalayas. क्या किया है उसने? Research institutions उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, इवन नॉर्थ ईस्ट में उसको दे हैव, नॉर्थ ईस्ट में पहले उतने इंस्टीट्यूशंस थे नहीं, बट इसके अंडर दिस निम्शे, इसको बोलते हैं निम्शे, NMSHE, निम्शे के अंदर बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स भी आए, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इंटीग्रेट किया, सिविल सोसाइटी को किया है, बेसिकली गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सो दैट द इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड. देन वी आर ग्रीन इंडिया मिशन. बेसिक टारगेट है ग्रीन कवर को बढ़ाना, और जो अभी ऑलरेडी है उसको, जो अलग अगर डिटोरेटिंग कवर है तो उसको इंक्रीज करो और बढ़ाओ. तो बेसिकली कार्बन सिंक्स ज्यादा क्रिएट करने. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दिस इज वन ऑफ द, अदर देन सोलर मिशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन. बहुत काम हुआ है इसके नीचे. क्या करना है? एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. फायदा क्या है? फूड सिक्योरिटी. कहाँ पे? स्पेशली इन रेन फेड एरियाज, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, resource conservation. बहुत काम हुआ. If the ones who are interested or somebody who's working in this field, you can read this. निकरा ने, मतलब बहुत सारे institutions है. Sustainable agriculture is one of the most efficient missions of these NAPCC other than the solar mission. And then you have knowledge, strategic knowledge on climate change. हर 8 missions के संग एक nodal agency, जैसे इसके लिए Department of Science and Technology is looking after your NMSKCC. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख रही है, सोलर वाले को MNRE देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर वाले को वाटर देख रहा है. तो एक नोडल एजेंसी है जो बेसिकली लाइन मिनिस्ट्री जो उस टॉपिक को डील करती है, बट उसके संग अदर मिनिस्ट्रीज के संग भी कोऑर्डिनेशन है. नाउ व्हाट आर योर SAPCC? SAPCC इज स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. कैसे करेंगे? अब जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान तो बना दिया, 8 मिशन हो गए. अब इस 8 मिशन में क्या होगा? वाटर मिशन है, वाटर तो स्टेट सब्जेक्ट हो गया. या आपके पास जैसे सस्टेनेबल हिमालयन मिशन है, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम की मिशन है. हिमालयस कहाँ से स्ट्रेच करें? स्टार्टिंग फ्रॉम JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, देन यू हैव बीच पे तराई रीजन आ गया, देन नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, थोड़ा बहुत आगे. तो दे आर स्प्रेडिंग अक्रॉस एंटायर स्टेट्स. तो यू नीड टू इन्वॉल्व अदर स्टेट्स ऑल्सो. तो आपके जो प्राइमरी नेशनल मिशन है वो आपके स्टेट, क्योंकि उस एरिया का जो उस एरिया में जो स्टेट पड़ता है, उस स्टेट शुड ऑल्सो बी अलाइंड, उनकी पॉलिसी शुड ऑल्सो बी अलाइंड विद द नेशनल पॉलिसी. सो करेंटली यू हैव 33 SAPCC. 2008 में NAPCC आया था, 2009 से SAPCC की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी. ना धीरे धीरे बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट टुक आउट सर्टेन गाइडलाइंस, फिर एक स्टीयरिंग कमेटी बनी, फिर उन्होंने सबमिट किया, फिर कुछ फंडिंग इश्यूज हो गए, करा के फाइनली बाय नाउ वी हैव 33 SAPCCs जिसको कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने क्लियर कर दिया. फंड्स कहाँ से मिलते हैं? फंड्स मिलते हैं नेशनल गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत मिलता है. नेशनल गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड अ नेशनल एडेप्टेशन फंड. तो मैक्सिमम फंडिंग इज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली, बट यू आल्सो हैव फंडिंग थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट NAF के थ्रू. एंड दीज आर द प्राइमरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट. क्यों? आई टेल यू व्हाई. बिकॉज व्हेन यू टॉक ऑफ मिटिगेशन के केस में अगर आप निकालोगे तो मिटिगेशन में स्टेट का उतना ज्यादा रोल नहीं होता. द नेशनल पॉलिसी गाइड्स, बिकॉज मिटिगेशन क्या, एमिशंस को कम करना है, तो आपके इंडस्ट्रीज में कम करना है, या रिन्यूएबल्स के टारगेट्स हैं उससे कम करना है, फॉसिल फ्यूल का यूज से कम करना है. दैट इज जनरली गाइडेड बाय द नेशनल पॉलिसी. लेकिन अगर आप अडेप्टेशन की बात करो
तो अडेप्टेशन में क्या होता है, हर स्टेट के अपने इश्यूज हैं, जो कोस्टल स्टेट है उसके अपने इश्यूज हैं, जो हिल स्टेट है उसका अपना इशू है, राजस्थान इज अ डेजर्ट स्टेट, उसके अपने इशू है, सेंट्रल इंडिया जहाँ पे झारखंड और इनके छत्तीसगढ़ के, बिकॉज ये माइनिंग बेल्ट है, प्रोसेसिंग बेल्ट है, इनके अपने इश्यूज हैं। तो इन सबके अडेप्टेशन के इश्यूज भी अलग अलग हैं, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, दे आर प्रिवी टू डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके हाउ टू integrate that national policy, which elements of national policy to integrate, वो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है। वाई? बिकॉज उनकी ज्योग्राफी अलग है, उनके इश्यूज ही अलग है। तो इनका प्राइमरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या रहेगा फॉर वन पर्टिकुलर स्टेट इज एसएपीसीसी। तो आपने एनएपीसीसी की मिशंस को अपने स्टेट में कैसे चलाना है, या आपके अगर अपने कुछ, क्योंकि हर स्टेट की वल्नरेबिलिटी अलग होगी, तो उसकी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से उसकी अडेप्टेशन की स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। अडेप्टेशन तो बहुत लोकल कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। सो बहुत सारे एसएपीसीसी हैं, इनके बहुत सारे असेसमेंट भी हुए हैं। सो यू हैव टू रीड मोर अबाउट इट, एंड इफ यू हैव सम अभी बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है असल में, क्योंकि अगर सपोज ऐसे कि राजस्थान का स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कैसा होना चाहिए और सिक्किम का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कैसा होना चाहिए, तो नाउ बिकॉज द क्लाइमेट इन दिस टू स्टेट्स आर वेरी डिफरेंट। अनदर थिंग इज कि द इश्यूज दैट दे हैव, राजस्थान में वाटर अवेलेबिलिटी इज, बट दे हैव ample solar resource available. Sikkim is a hill state. उनके लिए हाइड्रो के अगर टू हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो उनको अपनी नेशनल पॉलिसी में डिपेंडिंग ऑन मैप देयर टेरेन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज आर दे प्रिवी टू, उसके हिसाब से। क्योंकि एक्शन प्लान, अगर आप अडेप्टेशन की बात कर रहे हो, अडेप्टेशन का पहला स्टेप होता है पहले ये बताओ कि आप कितने वल्नरेबल हो, किस चीज से वल्नरेबल हो, आपके ऊपर क्लाइमेट रिस्क कितना है, क्लाइमेट रिस्क के एक्सपोजर का कितना चांस है, तो आप किस हैजार्ड के लिए प्रोन हो। तो अगर आपने उस हैजार्ड से बचना है, यानी कि अपनी रेजिलियंस को बढ़ाना है, तो आपके अडेप्टेशन की क्या स्ट्रैटेजी, वो बहुत ही लोकल स्पेसिफिक होती है। दैट इज व्हाई एसएपीसीसी हैव गॉट मोर इम्पोर्टेंस। एंड बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जितने स्टेट एक्शन प्लान है उनमें वल्नरेबिलिटी के ऊपर असेसमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन उस वल्नरेबिलिटी को लेके जो रिकमेंडेशंस आने चाहिए क्लाइमेट पॉलिसी में, अनफॉर्चुनेटली उतना हुआ नहीं। See, it's a very broader debate, so let me not go too deep into it. But the thing is कि it also depends कि आपने आपके एसएपीसीसी को किसने प्रिपेयर किया। कहीं कहीं पे उन्होंने क्या किया, दे इन्वॉल्व यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बना दिया, जो बेसिकली बहुत ही एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कहीं कहीं पे क्या हुआ, आपका उसको डेवलपमेंट एड जीआईजेड आ गया या किसी और एड का उसने बना दिया, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव हुआ है। कहीं कहीं पे कुछ स्टेट्स ने क्या किया, दे हैड लोकल कंसल्टेशंस। So when you take an input from local stakeholders, that becomes a much more realistic plan for that particular place. So सब SAPCC में कुछ एक issues हैं, कुछ कहीं पे कुछ issues हैं, कहीं पे कुछ issues हैं. Read more about it if this is your area of interest. Okay. So this much I'm going to कितने बज गया अभी? This much I'm going to cover today. Yeah. हाँ, ये broadly I'll cover in the next one. I'm just giving you an idea of what I'm going to cover, because climate policy खत्म नहीं हो जाती, NAPCC, SAPCC 8 missions में खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि रिस्पॉन्स मेजर्स क्या हैं। अगर हम फिनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, 5 है। फिनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग को अगर हम अलग कर दें, क्यों? क्योंकि फिनेंस, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग मिटिगेशन, अडेप्टेशन के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर हम फोकस एरियाज देखें, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी का क्या रहा है, सब कुछ अगर आप एनएपीसीसी के 8 मिशंस देखोगे तो ब्रॉडली एवरीथिंग इज कवर्ड। मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अर्बन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट सिंक होते हैं। एनर्जी को कम, मतलब आपके जेजे एमिशंस को कम करने का सबसे नेचुरल तरीका है दैट यू हैव फॉरेस्ट ग्रोइंग। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमने एग्रीकल्चर में कोई मिटिगेशन टारगेट नहीं लिया वैसे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से भी एमिशंस रिलीज होते हैं। आप राइस पैडी फार्मिंग होती है, तो पैडी फार्मिंग में बहुत मीथेन रिलीज होती है, बट इंडिया हैड ऑलरेडी सेड हमारी फूड सिक्योरिटी इज अ नेशनल प्रायोरिटी, हम एग्रीकल्चर में नहीं लेंगे मिटिगेशन के टारगेट्स। वाटर एंड कोस्टल एरियाज, ये 3 चीजें are primarily focus of adaptation. So next session में in 1/2 I will focus on the broad policies that cover these, because इसमें क्या क्या policies हैं, policies के detail में नहीं जाएंगे because that there are too many, but I will try to sort of group together on these sectors where what are the broad policies which cover this. I will not cover NAPCC, I'll cover इसमें energy में act में क्या हुआ है, latest electricity policy में क्या हुआ, that I'll broadly cover in the next session. So with this I finished well within time, and you have any questions you can.
And please don't leave the Zoom meeting because next hands-on project का explanation आभा देगी, तो just don't leave the meet. So if you have any doubts, you tell me, and nahi hai to fir I can move. I'll make up your mind. Tell Till me. then, Abha, you continue with the hands-on project because if somebody wants to ask anything, they can pitch in. Okay. Yeah. So हाँ, so आज का इसको पहले मैं minimize कर लूँ. So आज का project is each group to prepare a brief summary of SAPCC of one state. State action plan on climate change. एक कोई state, 4 states मैंने निकाले, group ABCD. I hope कि groups बन गए हैं, and I think पिछला वाला project भी जमा कर दिया होगा. Pratiksha will update me on this later. But I'm assuming that the groups are made, and hopefully everybody has done the last project. So this, for today's session, the project is that these are 4 states: Uttarakhand, Maharashtra, Tamil Nadu, Sikkim. Why I've taken Uttarakhand is a hilly state. Maharashtra is a coastal state. Tamil Nadu is also coastal, but in terms of integration of harnessing wind energy and all this is very. Tamil Nadu is at the top of the line, and Sikkim is a very small state in the northeast. So northeast ke apne issues hote hain. So 4 states. So have a look at their SAPCC. Everything is available on Ministry of Environment website. MOFCC ki website pe available hai. You will find analysis also. So pick up these of the states assigned. Your focus should be on उनके SAPCC में mitigation और adaptation कैसे feature करता है, क्या चीजें mitigation में आ रही है, मतलब what is their focus area, mitigation पे कितना focus है, adaptation पे कितना focus है, and try to link it कि जो उन्होंने, क्योंकि बहुत states ने vulnerability assessment से start किया है, लेकिन उसको mitigation and adaptation planning में डाला कैसे है वो देखना. That is important to understand. And second thing is budgetary requirements, because हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, but where's the money? तो budgetary estimates क्या दिए हैं, and if you can get कि उनको कहाँ से कितना पैसा actually उनका state का allotment कितना रहा है, या फिर उनको center से कितनी whatever share they have got from center. So basically what steps have they planned and how much money do they have assigned? If you can find out these 2 things for these 4 states. 4 states मतलब one group, one state. Okay. So this much is from my side. And actually इससे जो आपने बोला है उससे रिलेटेड लेकिन एक जनरल 1-2 क्वेश्चंस हैं. मैं जैसे उत्तराखंड में ही रहता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि आज जैसे आपको पता है बहुत डिजास्टर्स होते हैं, तो एक ये टेंडेंसी ये रहती है कि हर डिजास्टर को लोग कहते हैं भाई क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है. तो ये इसको हमें कैसे देखना चाहिए भाई, मतलब कौन बोलेगा कि अगर कोई पहाड़ गिर गया या ज्यादा, मतलब इज एवरीथिंग क्लाइमेट चेंज, या कौन सा क्लाइमेट चेंज है कौन सा नहीं है, तो उसको कैसे इसको कैसे देखें हम? See, वैसे तो what you are saying, Anup, is absolutely correct. आजकल everything under the sun कुछ भी हो जाएगा बोलेगी climate change की वजह से हो रहा है, लेकिन क्या होता है scientifically, if I have to answer this, there is a attribution study. Attribution study मतलब कि आपने एक research study करी और research study में देखा कि अगर वो ये जनरली मॉडलिंग स्टडीज होती हैं, तो आपने देखा कि लास्ट से सपोज आपने 30-40 ईयर्स का पीरियड निकाला और आपने देखा कि इसमें अगर हमने क्या से सपोज मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना दिए, जैसे उत्तराखंड का, अभी आई एम डूइंग अ स्टडी ऑन उत्तराखंड ओनली, कि हमने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना दिए इतनी वल्नरेबल जोन्स में, तो वहां से वहां की जियोलॉजी चेंज हो रही है, वहां से मतलब, तो जो हमने एडिशनल अपनी तरफ से चीजें डाली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो नहीं होती, सपोज इतने वो धौलीगंगा का इंसिडेंट हो गया, वहां पे अगर वो प्रोजेक्ट ना होता, या मैंने इतने हाइड्रो, अगर मैं उन सब चीजों को हटा दूं एंड देन आई ट्राई टू मॉडल कि how the climate would have changed. So ये क्या हो गया, no human interference वाला projection हो गया. And another thing is कि then I उस projection से मैं compare करूँ, to give you an example, अगर मैं 30 साल पहले जाके एक projection run करती हूँ depending on पिछले 30 साल के डेटा के ऊपर, कि यहाँ से अब मैंने सारे प्रोजेक्ट्स को हटा के एक प्रोजेक्शन रन किया, तो क्या हुआ, 30 साल पहले रन किया था, से सपोज 1980 के डेटा पे रन किया और देखा कि 2020 में कैसा क्लाइमेट होगा. And then I actually observe अपनी अभी की ऑब्जर्वेशन है कि 2020 में कैसा क्लाइमेट है, तो क्या होगा, इफ यू फाइंड अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन, सो देन दे से कि दिस सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपने क्या निकाला था, जो हमने अभी बना दिया इतने सालों में, वो हटा दिया था उस मॉडलिंग में से, वो इनपुट्स हटा दिए थे. सो देन इफ यू फाइंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन, यू एट्रीब्यूट दैट चेंज टू क्लाइमेट चेंज, मतलब टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड. तो ये एट्रीब्यूशन स्टडीज होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत एट्रीब्यूशन स्टडीज नहीं है. तो साइंटिफिकली इफ यू हैव टू आंसर कि ये चीज क्लाइमेट चेंज से हो रही है कि नहीं हो रही है, देन यू मस्ट आस्क, हैव यू सीन एनी एट्रीब्यूशन स्टडी, ऐसा कुछ इस रीजन के लिए, या
कुछ एट्रीब्यूशन स्टडी हुई है कि नहीं, वरना तो कुछ भी कह दो, टेम्परेचर कितना बढ़े ये भी क्लाइमेट चेंज है, बट कैसे एट्रीब्यूट करो, एट्रीब्यूशन स्टडीज होती हैं, दे आर बेसिकली मॉडलिंग स्टडीज। पर उत्तराखंड के संग आई थिंक, आई नो माय स्टेट आल्सो, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज कि वो क्लाइमेट प्लानिंग में ना वो वल्नरेबिलिटी को इंटीग्रेट नहीं करते। मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द वेबसाइट, लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दे हैव डन, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके किया, ब्लॉक लेवल तक डाले मैप्स की, इस ये एरिया ऐसे प्रोन है, ये एरिया ऐसे प्रोन है। पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उस जगह पे डेवलप करते हो तो आप ये भी तो देखो ना कि अगर वो वल्नरेबल है तो वहां ये वाला प्रोजेक्ट क्यों डाल रहे हो, क्योंकि जब हैजार्ड होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आप वल्नरेबल हो, आपका एक्सपोजर है वहां पे, तो अगर आप वल्नरेबल हो और आपको एक्सपोजर होगा तभी वो हैजार्ड होगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, उन्हें कहते हैं जंगल में शेर आए किसने देखा, मतलब कहीं एक जगह है अनइनहेबिटेड जगह है, वहां वल्नरेबल है, वहां एक हैजार्ड आ गया और थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं हुई ज्यादा, तो हम कहेंगे चलो ठीक है उसमें लॉस एंड डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी जगह में आपको पता है और वहीं पे आपने हैबिटेशन कर दी, वहीं पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो आपका लॉस एंड डैमेज ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक द प्रॉब्लम विद आवर स्टेट इज दैट हम वो ना डेवलपमेंट प्लानिंग में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को इंटीग्रेट नहीं कर रहे। I will get in touch with you later, maybe 3 months के बाद. We're doing a study on this, focused on Uttarakhand. So if you can attribute something, I'll get in touch with you, give you the outputs of the study. But scientifically answering, you need to have a attribution study to determine कि ये actually human use की वजह से ही हुआ है कि नहीं हुआ है. Thank you. Arihant, you can ask questions. Rohini, Gayatri, Manasa, Risha, Samiksha, please ask questions. Aishwarya, Ashwin. Ashwin, you are doing such a nice thing. Like I'm observing that like you are giving a right answers. So you must be having any doubt, I guess. Like थोड़ा सा तो doubt रहेगा कहाँ पे. See, I will not push क्योंकि चलो ठीक है. क्लाइमेट पॉलिसी में अगर आपने if you have actually involved with some state government, with some civil society, with some research, मतलब जो हमारे ये actors involved जो हमने आज बात करे थे, तो उनको they'll have a perspective and they अगर आप if you are working in the domain you'll have more questions, otherwise ये अभी आज theoretically introduce हुआ है, तो Jabili wants to ask, I think. और है मे बी आप किसी और सेशन में ना अगर आप थोड़ा सा इस पे भी मतलब लाइट डाल सकें कि एक आम इंसान क्लाइमेट चेंज को लेके क्या कर सकता है। मैं अगर सपोज अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैं कई जगह मैं बोलने जाता हूं, है ना, कई लोग बुलाते हैं, तो अब आप सपोज कॉलेज के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये जो पूरा सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, ये इतना मतलब आप उसे टेक्निकल भी कह सकते हैं, तो इंसान फील करता है कि यार मैं इसमें क्या करूँगा। तो नॉट टुडे, क्योंकि आज हमारा टाइम एक्सीड हो गया है, बट आई जस्ट वांट टू लीव अ क्वेश्चन विद यू, है ना, तो अगर आप प्लीज, आप पे टाइम होगा नेक्स्ट सेशन में, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। थैंक यू। I'll cover it in 6 सेशन। अब अगला सेशन तो आई थिंक थोड़ा डिवाइडेड रहेगा, पर 6 सेशन में डेफिनेटली जो लास्ट सेशन होगा ना, I'll address it. Yeah. Okay, then if you don't have any questions, and I please think, make a group because Abha, please. Jabili, Jabili. Sorry, I have a question. So yeah, I heard a TED talk by Bhutan's Prime Minister. So he mentioned that Bhutan is currently carbon negative, but yet they are facing the climate consequences due to the other neighboring countries, or the major developed countries. So how are they made responsible for such things, the other countries? Is it through carbon taxes? No. There's a provision called loss and damage. अगर आप Paris Agreement को डिटेल में पढ़ोगे, and loss and damage पे ना methodologies भी final. Loss and damage मतलब the same, Fiji has got the same argument, Bhutan has got the same argument, small island states जो भी डूब रहे हैं ना, सारे के सारे small island states, Pacific में है, Indian Ocean में, they're very small. और sea level rise अगर 1 meter तक पहुंच गया, so the entire nation would be under sea water, वो तो डूब जाएंगे एकदम. So there's a provision that came up in Paris Agreement में, इसका provision तो बहुत पहले से चल रहा है. Warsaw में COP हुई थी. You'll have to find out which year it happened. Go and read about it. Warsaw Mechanism बोलते हैं. Warsaw Mechanism for loss and damage. They say that if a country faces loss or damage, loss मतलब, to give you an example, कि मेरे बाढ़ आ गई, floods आ गए और मेरा घर पूरा टूट गया उसमें, तो वो loss हो गया. या बाढ़ आई और मेरे घर में पानी घुस गया, थोड़े दरवाजे खराब हो गए, मतलब part of it I could retrieve a bit of it, so it was damaged.
So this is a technical term. Loss and damage is a technical term. So Warsaw mechanism निकला, Warsaw में जो COP हुई, generally if you find, look at the COPs ना, वो जो वहाँ उस COP में decide होता है, वो उस city के नाम से, जैसे Paris Agreement हो गया, Kyoto Protocol हो गया, Bali Action Plan हो गया, Copenhagen. तो Warsaw में जो COP हुई थी, उसमें they came up with a mechanism for loss and damage. कि that country, the one who's not responsible and is facing the consequences should be paid. The loss and damage should be compensated by the developed countries. There's a huge debate. Negotiations are still going on because the country, अभी जो loss and damage पे I think नई कुछ निकाला है इन्होंने COP26 में, पर developed countries ने क्या कर दिया, उसमें से legal liability हटा दी. Legal liability मतलब जैसे कि directly you cannot hold, मतलब हमारी कोई मतलब जो ग्लोबल एनवायरमेंट फंड हो गया या ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, वहां से तो हम चैनलाइज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट लीगली होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल. सो जो अगर आप कह रहे हो भूटान इज कार्बन न्यूट्रल एंड स्टिल दे आर फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज ट्रू फॉर एवरी अदर कंट्री, यू नो, कि जहाँ वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, यूजुअली डेवलपिंग कंट्री है, और दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल बट स्टिल दे आर फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस. सो देयर इज अ प्रोविजन. This issue is addressed under the Warsaw Mechanism for Loss and Damage, but legal liability of developed countries has not been finalized because unfortunately Paris Agreement का COP हो या UNFCCC का COP हो या Paris Agreement की CMA हो, how it works, कोई डिसीजन तभी निकल के आता है जबकि उस पे कंसेंसस हो, मतलब कि जितनी अटेंडिंग कंट्रीज है, एवरी कंट्री हैज टू अग्री. अगर एक कंट्री भी हाथ खड़ा करके, लाइक यू रेज योर हैंड राइट नाउ, एनी कंट्री इट रेजेस अ हैंड एंड से कि आई डू नॉट अग्री, these are my reasons. Now those reasons can be, मतलब आप कहो कि वो globally aligned हो सकते हैं, नहीं हो सकते, that debate is separate. But even if one country objects to it, that consensus is 100% agreement पे होता है. तो loss and damage के लिए भी developed countries have said कि नहीं, हम legally liable नहीं होंगे. अब legally liable नहीं होंगे तो फिर how do you ask them to pay? How do you compensate? So you have to read more about it, but there's a provision already in place which is मतलब mode of payments have not been agreed as of now. Oh, thank you for such I hope insightful. I hope I have not confused you more. But read about WIM बोलते हैं, Warsaw International Mechanism है, कुछ ऐसा for loss and damage, LND. Google it और इसके decisions वगैरह पढ़ना Warsaw वाले COP के, very interesting. Yeah, definitely. Thank you, Abha. So any more questions about 8 हो गया. अगर if you have a questions, please come forth fast, otherwise then we'll call it a day. Okay. So shall I stop recording, Pratiksha, now? Yeah. Can we mail you our question? You can put it in a Slack, like everybody wants to know now. So if you are comfortable, you can put it on a Slack. Otherwise, you can mail us. No problem. Yeah, but you're telling me something? No, I'm answering Risha okay. because she said, okay, you can. If she has a question, I'm here still. Yeah, tell me, Risha. Ma'am, I had a question. तो मुझे लगा my question is like so difficult. तो मुझे लगा कि okay, हमको time नहीं है. Just my question था, कल मैं आपके recordings देख रही थी, तो उसमें दोहा agreement के बारे में पता था कि कैसे हम countries like India जो हमको emissions reduce करने 18% compared to 90 levels. तो अभी तो बदल गया because we are in the Paris agreement now. तो हर country का baseline वो लोग ने 90 लिया. तो क्या India का baseline में 90 था? Risha, India is a developing country. Kyoto Protocol is not applicable. Okay. Kyoto Protocol is applicable only for Annex A countries. No, sorry, Annex 1 country. जो UNFCCC का Annex 1 है, वो Kyoto Protocol का Annex A बन जाता है, Alpha. वो सिर्फ developed countries के लिए है. You go through the slides once again, you know, because ये नया concept है. Go through the slides once again. Kyoto Protocol is important because it gave a emission reduction target to developed countries. हमें India को करना ही नहीं. India is a developing country. So 5% first वाले में, 18% second में, 18% में भी 2012 में adopt हुआ था. अभी ratify होके in force December 2021 में आया है. 9 years. So 9 years have already been lost. पर उनके लिए पॉसिबल है क्योंकि दे हैव ऑलरेडी पीक्ड, उनके एमिशंस कम हो रहे हैं ऑलरेडी. डेवलप्ड कंट्रीज के अगर जिसमें सेशन में आई थिंक नेक्स्ट, आई डोंट नो नेक्स्ट में टाइम रहेगा, लास्ट वाले में आई ट्राई टू एड्रेस द मेजर थिंग्स, जैसे नेट जीरो की डिबेट है और नेगोशिएशंस की डिबेट. आई ट्राई टू पैक अप एवरीथिंग इन द लास्ट सेशन. तो नेट जीरो तो ये ऑलरेडी पीक कर चुके हैं 2001 में, 11 में, 5 में, ये सब ऑलरेडी पीक कर गए. उनके एमिशंस तो ऑलरेडी कम हो रहे हैं.
और उनको कम कर रहे हैं 1990 से कम. And you know they are such advanced in these countries have such advanced technologies कि इनके लिए रिड्यूस करना आसान भी है. फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था. 2012 के बाद क्या हुआ, जब क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड लॉन्च नहीं हो पाया, मतलब कुड नॉट कम इनटू फोर्स, तो कार्बन मार्केट कोलैप्स कर गया. मतलब पीपल हु वाज बैंकिंग सो मच, बिकॉज तब CDM चल रहा था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, प्रोजेक्ट्स फंडिंग थी, कार्बन क्रेडिट्स चल रहा, सब कुछ 2012 के बाद सब कोलैप्स कर दिया. क्यों? क्योंकि सेकंड कमिटमेंट कुड नॉट कम इनटू फोर्स. Now what has happened is December 2021 में तो 2020 में तो second commitment period शुरू हो रहा है. It has come into force. Another thing is I have not covered it here because it doesn't directly deal with, you know, it does otherwise. Aviation में भी एक बहुत बड़ी स्कीम निकल के आई है, which is called CORSIA, Climate Offsets Reduction and Offsetting Scheme for International Aviation, because aviation is also one of the transport sector pollutant. Energy के बाद सबसे ज्यादा polluting sector कौन सा है? Polluting in the sense emitting sector कौन सा है? Transport. Transport में भी सबसे ज्यादा मतलब major share of emissions are through aviation. और एविएशन वाले emissions address नहीं हुए थे पहले. There are various reasons. I'll not go into details क्योंकि वो bunker emissions, जो भी whatever reasons. अभी recently 2015 के 16 के आसपास एक इंटरनेशनल स्कीम आ गई है ऑफसेटिंग इंटरनेशनल एविएशन को लेके, कि एविएशन सेक्टर को सेक्टर अप्रोच है, मतलब कंट्री नहीं कम करने, सेक्टर ने कम करने. तो आप सेक्टर में क्या करोगे, आप डोमेस्टिक सेक्टर को टच नहीं कर सकते बिकॉज वो नेशनल सोवरेनिटी फैक्टर कम्स इनटू प्ले. सो इंटरनेशनल एविएशन है, ऑल कंट्रीज आर इन्वॉल्व, सो दे एविएशन को कम करना है, एंड दे कमिटेड विल गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2020. तो उस स्कीम की वजह से कार्बन न्यूट्रल कैसे जाओगे? एविएशन सेक्टर तो बहुत एक्सप्लोर कर रहा है. मतलब लेट अस नॉट for the time being keep corona aside and whatever slump has come into the economy because of corona, let us leave it aside. कैसे करोगे? सेक्टर ग्रोइंग है. So what you do is you offset. Offset मतलब वही, मैंने यहाँ emissions निकाले, से suppose I to limit it to 100 for the sake of example, but my emissions are 110. They are going to be 120 next year because my sector is growing. So what you do is वो 10 emissions किसी और प्रोजेक्ट में कम कर दो, कोई एफोरेस्टेशन का प्रोजेक्ट कर दो या कोई वाटर सैनिटेशन का प्रोजेक्ट करो, जिससे कि आप क्वांटिफाई कर सको कि इतने emissions कम हो गए. So what has happened is carbon market has revived. Now second commitment has come into play, carbon market has revived. So ये जो next session में तुम्हारे जो carbon markets को deal करेगा, that person will give you an insight into carbon market. Oh shit, मेरा low battery हो गया. I think थोड़ा चल जाएगा. So be clear about it that India doesn't have any mitigation commitments. India has not taken any mitigation commitment per se sectorally. India has, whenever has taken a mitigation commitment, has only been in terms of reduction in the emission intensity of GDP. कि एमिशन इंटेंसिटी और जीडीपी, उसके बियॉन्ड हमने कभी नहीं कहा कि हम अपना एनर्जी सेक्टर इतना कम कर देंगे. हमने ये बोला है हम 40% शेयर ऑफ एनर्जी कर देंगे रिन्यूएबल का या नॉन फॉसिल से कर देंगे, या इतना बिलियन टन हम, क्योंकि प्रोजेक्शंस अब वो सी, आई विल नॉट गेट इनटू हाउ मिनिस्ट्री कमिट्स टू सच की पहले 2025 किया, फिर 30-35 कर दिया, अभी 45 कर दिया, आप कह रहे 1 बिलियन टन कम कर देंगे. बस हमारे अपने प्रोजेक्शंस ऑलरेडी सजेस्ट कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं. इट्स वेरी मच डूएबल फॉर इंडिया, दैट इज व्हाई इंडिया हैज कमिटेड. बट otherwise India has always committed in terms of कि हमारे per capita emission हमेशा global average से कम रहेंगे और emission intensity of GDP will reduce by so much, and उसमें we are showing too much ambition. अभी latest 45% बोल दिया मोदी जी ने ग्लासगो में last month only. So हाँ, so ये जो हमने ये 50%, 5%, 18% below 1990, India is not a party. मतलब India has got no commitments. Getting my point? Paris Agreement के अंदर भी commitments नहीं है. Risha, please go through the slides. Paris Agreement में कोई commitment नहीं है, NDC है, National Development Contribution. तो तुम मतलब down to top approach है, हाँ. But like every country says ना कि 30% कम करेंगे, 7% per year कम करेंगे, वैसा मैं पूछ रही थी. वो प्लेज है. तो इंडिया ने क्या प्लेज किया? इंडिया ने अपने एनडीसी में कोई प्लेज नहीं किया. इन टर्म्स ऑफ इंडिया ने 3 क्वांटिफाइड एमिशंस, 3 क्वांटिफाइड टारगेट्स हैं. फर्स्ट थिंग इज हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को कम कर देंगे, कितना? 30 to 35%. सेकंड वी सेड 40% शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल. जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 40% नॉन फॉसिल. नॉन फॉसिल इज स्मार्ट. व्हाई? बिकॉज अब हमने अपना लेजिस्लेशन चेंज करके लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल में ले लिया है. सो हमारा लार्ज हाइड्रो काउंट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी काउंट होगी, न्यूक्लियर एनर्जी काउंट होगी. यू काउंट न्यूक्लियर एंड 40%, इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल, BAU है इंडिया के लिए. मतलब लेट मी नॉट नो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट इट्स वेरी मच डूएबल फॉर इंडिया. थर्ड टारगेट वी सेट हम 2.5 to 3 बिलियन टन का एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट कर देंगे. हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने एमिशंस कम करेंगे. अभी जो COP26 में मोदी जी ने वो पंचामृत वाली प्लेज दी है, उसमें ही सेट कि 50% हमारा वो होगा, क्या नाम, शेयर ऑफ रिन्यूएबल. Second thing he said 45% less reduction in emission intensity, and third thing is 500 gigawatts installed solar.
That's a very Okay. ambitious target. And if we take these steps, then we go carbon neutral by 2070. So reducing your emissions for the first time has come now in Glasgow. But it is very much doable for India. So that is why we've committed. Otherwise, India has never taken, mitigation targets in terms of कि इसको कम कर देंगे, उसको कम कर देंगे. Emission intensity of GDP की बात करते हैं इंडिया वाले. Okay, understood. Thank you, ma'am. I understand, there's too many terminology, too much thing packed into a very short period, but read through the slides you come to. Understand the divide between developing and divide. Understand the difference and mechanisms between Kyoto Protocol and Paris Agreement. If you understand that much, then ये इतना mix up नहीं होगा.